ہمیں آکسفورڈ سے ناظرین پروفیسر عدیل ملک صاحب جوائن کر رہے ہیں، پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب، اگر میں آپ سے کوئکلی جان پاؤں، آپ ساؤتھ ایشیا کو کور کرتے ہیں اور پولیٹیکل ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، تو جب حسینہ صاحبہ کے بھاگنے کی خبر آئی کہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے ہندوستان چلی گئیں، تو آپ نے کیا سمجھا کہ یہ ریلیپس ہے بنگلہ دیش کا اپنے پرانے ماضی کی طرف یا کوئی نئی ڈیولپمنٹ؟ میرے خیال میں یہ کافی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پچھلے 30-40 سالوں میں خاص طور پر بنگلہ دیش کی کریشن کے بعد اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ڈومینیٹ کرتا تھا اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کو، لیکن اس وقت جو گراؤنڈ پہ میری جن لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ انفیکٹ کل جب آج صبح پتہ چلا کہ حسینہ واجد صاحبہ جا رہی ہیں چھوڑ کے بنگلہ دیش، تو لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ دلی جائیں گی، وہ موسٹ پروبیبلی ہندوستان جائیں گی۔ تو بہت میسو اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے اس وقت آن دا گراؤنڈ۔ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ، اس کی کیا وجہ؟ اگر میں اس کے ساتھ آپ کو لیٹ می گیٹ اے پوائنٹ آف ویو فرام ناصر شفیق صاحب، اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کے اوپر اس کی کیا وجہ؟ طلعت صاحب، آج ایک بنگالی دوست نے جب یہ واقعہ ہوا 1:30 بجے میڈم حسینہ واجد چلی گئیں، تو انہوں نے کامنٹ کیا، اور ایک بڑا مختصر کامنٹ تھا لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ انہوں نے یہ کہا، اگرتلہ سے اگرتلہ تک کا سفر، لیکن اس میں 57 ایئرس لگے، 1968 سے لے کے 2024 تک۔ اینٹی انڈیا کا سینٹیمنٹ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بہت زیادہ وہاں پہ، اور اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ میرا خیال ہے خود میڈم حسینہ واجد کی پالیسیز جو رہی ہیں پچھلے 15 سال سے، وہ یہ ہیں۔ انہوں نے جتنی اپوزیشن تھی تمام کو دبایا، اسپیشلی جماعت اسلامی، ان کو بھی ریسنٹلی بین کیا، اور انڈین انوالومنٹ، را کی انوالومنٹ ان دی انٹرنل میٹرز آف دی بنگلہ دیش اتنی زیادہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ ایک بنگلہ دیشی صحافی نے خود بتایا، میں نے انہیں کہا پاکستان کیوں نہیں آتے، جبکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ آپس میں اتنا پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، آپ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا اگر ہم بنگلہ دیش میں پاکستان کے ویزا کے لیے اپلائی کریں تو ہمیں بنگلہ دیشی گورنمنٹ آفیشل سے پہلے را کے آفسرز کے انٹرویو سے گزرنا پڑتا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر؟ جی، بنگلہ دیش کے اندر۔ یہ مجھے وہاں کے ایک صحافی نے بتائی، اس کے علاوہ کچھ اور وہاں کے لوگوں نے، انہوں نے بھی اسی طریقے کے ذکر کیا۔ تو میرا خیال ہے یہ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ پہلے بھی تھا، لیکن میڈم حسینہ کی پالیسیز کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں سے بڑھتا گیا، اور جس طرح بھی آپ کہہ رہے تھے کہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی، آئی وڈ سے کہ یہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں تو ضرور ڈیولپ ہوئی، لیکن یہ اس کا فلیش پوائنٹ تھا، جبکہ یہ سچویشن یہ لوا پک رہا تھا بہت سالوں سے۔ اور اس کے پیچھے یہ جو کوٹا سسٹم ہے، یہ تو پہلے بھی آیا تھا، آج سے کوئی 3-4 سال پہلے بھی یہ اٹھا تھا، لیکن اس وقت اتنے حالات خراب نہیں ہوئے تھے۔ بٹ یہ انڈین انوالومنٹ اتنی زیادہ ہو گئی کہ، اور کوٹا سسٹم، پھر پہلے اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے، وہ ٹریگر بن گیا، لیکن بیک گراؤنڈ اس کا کچھ اور تھا۔ لیٹ می گو ٹو عدیل ملک صاحب اگین۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ اس کے علاوہ ذرا بلڈ اپ کے اوپر بات کیجئے گا۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ میں فگرز دیکھ رہا تھا اکانومی کے اوپر، کیونکہ آپ پولیٹیکل اکانومی کو بھی کور کرتے ہیں۔ تو حسینہ واجد نے ابھی ان کے بیٹے نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ سیاسی طور پر اب واپس نہیں آئیں گی، وہ بہت ہارٹ بروکن ہیں، انہوں نے بنگلہ دیش کے لیے اتنا کام کیا، اکنامک فگر کوٹ کر رہے تھے، اور ہم نے پھر اکنامک فگرز دیکھے۔ ہمیں GDP گروتھ کو اگر آپ ایک میئر لے لیں تو کووڈ کا سال نکال کے 6% کے اوپر گرو کر رہی تھی، امپلائمنٹ تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری کام کر رہی تھی، تو مومنٹم تو ٹھیک تھا۔ تو یہ ہنگامہ جس سکیل پر ہوا، یہ تو کافی سرپرائزنگ ہے۔ جی دیکھیں، اس میں 2 باتیں، جب بھی معیشت ترقی کرتی ہے تو ایک نئی کلاس جنریٹ ہوتی ہے کہ جس کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ریفارمز بھی ہوں اور ان کی جو وائس ہے وہ نیشنل ڈیسیجن میکنگ میں شامل ہو۔ تو اکانومی بنگلہ دیش کی اچھی چل رہی تھی، لیکن جو کم از کم پچھلے 2-3 سالوں میں کچھ مسائل ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ایکسپورٹ کی فگرز ہیں اور ریزروز کی فگرز ہیں، وہ گورنمنٹ نے خود اس کو ریکگنائز کیا کہ وہ اوور سٹیٹڈ تھی، یعنی انہوں نے بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ پھر جو ان امپلائمنٹ ہے بنگلہ دیشیوں کے لیے، خاص طور پہ ینگ لوگوں کے لیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ایک کافی عرصے سے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ جو کوٹا تھا جس کا اکثر ذکر کیا جاتا تھا، وہ 2018 میں ریموو ہو گیا تھا، لیکن جون میں وہ اوور ٹرن ہوا، ہائی کورٹ نے اس کو اوور ٹرن کیا، اور جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ تھی وہ کورٹ میں نہیں گئی اس فیصلے کے خلاف،
जिसको लोगों ने समझा कि वो इसका मतलब है कि कोटे के हक में है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट भी इसका हिस्सा है। लेकिन उसके साथ एक जो खास बात है जो हमें समझनी चाहिए, हमारे पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो आखिरी टाइम पे लोग निकलते हैं उससे पहले बहुत ज्यादा कहानी खिचड़ी पकती रहती है। उसमें एक तो जो नासिर साहब ने जिक्र किया कि जो पेंट अप एंगर थी ना, कि एक इंस्टीट्यूशनल वॉइड, इदारा जाती खला क्रिएट हो रहा था बांग्लादेश में, कि पहले तो उन्होंने इलेक्शन लड़े और पूरी ऑपोजिशन को उन्होंने एक साइड पर लगा दिया, उनको शामिल नहीं होने दिया। फिर जितने इदारे थे, जुडिशरी, आर्मी, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, उसमें अपने लॉयलिस्ट भर दिए। और फिर उसके बाद लोगों को कोई रास्ता नहीं मिला कि वो अपनी ग्रीवेंसेस का इजहार करें। फिर उन्होंने पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा यूज की, और जब आप फोर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बहुत सारी हलाकतें हुई, सिर्फ कल 64 लोग डेथ हुई, तो उससे फिर काफी ज्यादा इम्पैक्ट है। और फिर एक और मैं चीज आपको वेरी क्विकली मेंशन कर दूं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, इसको कहा जा रहा है कि ट्विटर वाज द बिग पॉलिटिकल मूवमेंट इन बांग्लादेश रिसेंटली। और उसमें जो फॉरेन बांग्लादेशीज हैं, उन्होंने अब लंदन में, ऑक्सफोर्ड में, न्यूयॉर्क में, हर जगह प्रोटेस्ट हुए। और ये तो सोशल मीडिया का आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी, लेकिन बांग्लादेश में, दूसरे मुल्कों में भी, इवन अब यूएस में इंतखाबात आएंगे, वहां पे भी सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि ये मोबिलाइज करने में। इस पे आते हैं कि इसको प्रोजेक्शन कैसे हुई, जरा वापस आइएगा। हिंदुस्तान का क्या इंटरेस्ट है? जो तारीख है वो तो है अवामी लीग की, और वो तो हमें समझ आती है, लेकिन मौजूदा हालात के तनाज़ुर में हसीना वाजिद जैसी प्राइम मिनिस्टर का मुल्क में होना हिंदुस्तान के लिए क्यों अहम था? तलत साहब, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो पिछले 3 हफ्ते में ह्यूमन लाइफ्स की लॉसेस हुए, वहाँ पे तकरीबन 300 से लोग ऊपर लोग मारे गए, ये एक बहुत बड़ा सान्या है। ये एक ह्यूमैनिटी का लॉस हुआ है। ये बांग्लादेशी या बंगाली से जो भी वो लोग हो गए, और जिसके ऊपर मेरा ख्याल हम सबको बहुत दुख है, और हमें दुख का इजहार करना चाहिए। और हम बांग्लादेशी अवाम के लिए और बांग्लादेश के लोगों के लिए, बांग्लादेश की आर्मी के लिए एक खैर सगाली और एक नेक ख्वाहिशात का पैगाम देते हैं। अल्लाह ताला करे कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी पीस आए, नॉर्मलसी आए और लोग खुशहाल हों दोबारा। अभी आपका क्वेश्चन कि इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, देखें, इंडिया का इंटरेस्ट तो बिल्कुल खुली किताब की तरह, हेजमोनिक डिज़ाइन हैं उसके। इंडिया क्या करता है अपनी नेबरिंग स्टेट के साथ? इंडिया पूरे साउथ एशिया में क्या करता है? जहाँ पे उसका बस चलता है, जिस कौम को वो दबा सकता है उसको दबाओ। पाकिस्तान से तो यही मसला है ना उसका, कि जी हम उसके दबाव में नहीं आते। तो यही चीज़ है कि बांग्लादेश के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो उसको अनफॉर्चुनेटली अपनी प्रॉक्सी बना के रखना चाहते हैं, एक सैटेलाइट स्टेट का दर्जा दे के रखना चाहते हैं। और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं पिछले काफ़ी सालों के साथ। कंसिडरिंग ये वाकयात हुई, इतनी कामयाबी तो नहीं है, लेकिन हसीना वाजिद की मौजूदगी में उनको लग रहा होगा कि वो बहुत कामयाब, बहुत ज़्यादा। ये इतने ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं। आज सुबह 7 बजे एक ढाका से किसी दोस्त ने मुझे एक मैसेज किया, और उन्होंने कहा कि आज इट्स गोइंग टू बी द डे ऑफ लिबरेशन। तो मैंने कहा ठीक है, ये काफ़ी दिनों से लोग होपफुल हैं, शायद वो कोई ऐसा ही होगा। लेकिन ये है कि उसके बाद घंटों के अंदर जो सिचुएशन बदली, तो मेरा ख्याल है ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी बने। एंड आई मस्ट कमेंट बांग्लादेश आर्मी ऑल्सो, उन्होंने बहुत सेंसिबल काम किया, मुजाहरा किया। एक्चुअली उन्होंने एक बफर स्टेट क्रिएट किया, उनको मैडम हसीना वाजिद को एक सेफ एग्जिट किया। अब आर्मी चीफ जो स्टूडेंट रहनुमा हैं, जिसमें डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि एक बहुत जमा साल किस्म की तहरीक है, उनकी ख़वातीन इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रही हैं और बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदुस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वहाँ पर हिंदुस्तान, उन रियासतों में हिंदुस्तान का बड़ा मसला रहता है। तो हसीना वाजिद वो काम भी तो कर रही थी कि आपको हम सहूलत फराहम करते हैं, या आपको, सो दे हैड अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एज वेल। यस, दे हैड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। फिर उनके ट्रेड रिलेशंस हैं, फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो उन्होंने उनको अपनी प्रॉक्सी स्टेट बनाया हुआ था, उनको अपनी सैटेलाइट स्टेट बना के रखा हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ द बांग्लादेश, मेरा ख्याल है मैडम हसीना, ये बांग्लादेशी लोगों का ख्याल है कि उनको इंडिया को पूरा फैसिलिटेट कर रही थी। लेट मी गो टू प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर जरा ये बताइए कि सिंबलिज्म किसी भी हंगामे बड़ा अहम होता है। ये सिंबलिज्म के जो उनका फाउंडर है उसके मुजस्मे को तोड़ना, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाना, उसके अंदर भी जो मुजस्मा लगा हुआ था शेख मुजीब का, उसको हाथ से पकड़ कर बाहर लेके आना, ये एक बहुत बड़ा सिंबलिज्म है। हाउ डू यू रीड दिस? व्हाट डज इट मीन?
देखिए ये मैसिव मोमेंट है, क्योंकि जो बांग्लादेश में एक खास तरह का कंसेंसस था पाकिस्तान के हवाले से, वो तो मौजूद है, आज भी मौजूद है। लेकिन जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है वो फिर आपको खराब करती है। जिस तरह मुर्सी साहब भी जब आए इजिप्ट में, तो शुरू में उनको सपोर्ट थी, लेकिन फिर जो ही उन्होंने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की तरफ या ट्रांजिशन की तरफ कदम नहीं उठाया तो उनको पसपाई मिली। तो ये बहुत बड़ी जो फिगर्स होती हैं जो बज़ाहिर आपकी आज़ादी की तहरीक में अहम रोल प्ले करती हैं, अगर आज़ादी के बाद वो एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बुनियाद नहीं रखती, अलायंसेज नहीं बनाती, तो उसके खिलाफ वो पुश बैक होता है। अब जाहिर है इसमें जो जमात इस्लामी के बहुत सारे लोग थे जिनको फांसियां दी गई, बहुत सख्त सजाएं दी गई, मुआशरे में इसका शऊर था कि ये दे हैव क्रॉस द रूबिकॉन, कि एक सोसाइटी में एक खास तरह की विच हंटिंग हो रही है। जो आम बंगाली है उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ठीक है पाकिस्तान से हम अलहदा हुए, हमारी तहरीक थी, लेकिन हमारे अपने लोगों को जिस तरीके से आप बिन पुट इनटू द डॉग हाउस और उनको एक एक करके कत्ल किया जा रहा है और ख़ास तरीके से उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इसकी भी काफ़ी सेंसिटिविटी थी। और प्लस ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, ये आपने जिक्र किया, बहुत अहम है कि जब आपकी बुनियाद ही आपकी सियासी जो उठान है उसकी बुनियाद अगर वायलेंस पे रखी हुई है, ग्रीवेंस पे रखी हुई है। और इन हंगामों के दौरान भी मैं देख रहा था कि हसीना साहिबा ने एंटी पाकिस्तान कार्ड खेलने की कोशिश की, और जब मुजाहिरीन थे तो उन्होंने कहा जी कि ये तो वो रज़ाकार हैं जो फैसिलिटेट किया करते थे पाकिस्तान को, तो उसके ऊपर और हंगामे फूट पड़े। क्या डिड शी नॉट रीड द रूम? मतलब इतने अरसे से वो ताकत में है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, और रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया है खातून प्राइम मिनिस्टर का, दुनिया भर में इससे लंबा किसी ने सर्व नहीं किया। डिड शी नॉट रीड द रूम? ये क्या हुआ? आई थिंक शी डेट द सिचुएशन, लेकिन शायद बाज़ का ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। एंड दूसरा ये है कि इंडियन बैकिंग इतना ज़्यादा थी और हिंदुत्व के लोग जो हैं वो उनको पूरा बैकअप कर रहे थे, एंड शी वाज क्वाइट और कुछ तो रॉ उनको बता ही देती कि उनके अपने हालात क्या हैं, कम से कम यही बता देती उनको। आई थिंक टिल लास्ट मोमेंट वो उनको यही बताया गया कि कोई बात नहीं, हम सिचुएशन संभाल लेंगे। तो ये तो रहा कि एक पुराना तरीकाकार है। मैं प्रोफेसर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। उन्होंने सिम्बलिज्म की बात की, तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस मैं भी इस पर बात करूँगा। आज जो शेख मुजीब साहब का मुजस्समा तोड़ा गया, वो एक्चुअली एक मुजस्समा नहीं तोड़ा गया तलत साहब, वो एक आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ लोगों का एक्सप्रेशन ऑफ एंगर था। वो आइडियालॉजी जो 1972 और 1973 में आई थी बाक्सल की शेप में, वन पार्टी रूल, तो मैडम हसीना वाजिद ने तो इनफैक्ट आस्ता आस्ता उसी पे चला गया था ना। जमात इस्लामी के लीडर्स जो 80 साल के 90 साल के जिन लोगों को फांसियां दी गई, कैद दी गई, पार्टी को बैन किया, जो है दूसरी जमात को, खालिदा ज़िया साहबा की जमात को, उसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया, बाकी छोटी जमातें उनको साइड लाइन कर दिया। तो जब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को साइड लाइन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को साइड लाइन कर रहे हैं। और ये पब्लिक एंगर है, ये पब्लिक एंगर है, एक दो लोगों ने नहीं किया, नॉट एट ऑल, ये नई जनरेशन ने किया, नॉट एट ऑल। एंड फिर इसमें एक चीज़ और देखनी है ताला साहब, ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे। यस, पहले 2 हफ्ते में ये स्टूडेंट्स थे, लेकिन अगर आप पिछले 3 दिन के ऊपर इसको क्लोजली फॉलो करें, देखें, इंजीनियर्स थे, लॉयर्स थे, बीच में इवन सिविल सोसाइटी आ गई, पुलिस के लोग, सिविल सोसाइटी आ गई, पुलिस रिफ्यूज टू फायर, आर्मी रिफ्यूज टू फायर। तो ये एक पब्लिक एंगर था, एक पब्लिक प्रेशर था। तो मेरा ख्याल है इसके आगे हसीना वाजिद साहबा को जाना ही बनता था, और वो वी विश एंड होप कि जी अभी बांग्लादेश में इंशाल्लाह नॉर्मलसी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में टुवर्ड्स आपके पॉइंट से लेते हुए प्रोफेसर साहब 1 मिनट में बताइएगा, इसके बाद क्या लंबा मिलिट्री रूल? अभी तो वो बात कर रहे हैं सिविल सोसाइटीज़ के मेंबरान से, मुजाहिरीन के मेंबरान से, या क्विक न्यू इलेक्शंस? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में आर्मी में हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग हों कि जिनका इंटरेस्ट हो कि वो लंबा रूल करें, और अगर उन्हें यूएस की सपोर्ट मिलेगी तो शायद वो आ भी जाए, क्योंकि यूएस काफी खुश नहीं थे हसीना वाजिद की गवर्नमेंट से। लेकिन बांग्लादेश में जिस लेवल की मोबिलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, उनकी मिलिट्री के लिए एक ट्रांजिशनल रोल से ज्यादा लेना खतरे की घंटी होगी, उनके लिए अपने लिए भी मुश्किल होगा इसको सस्टेन करना।